Hey moms, congratulations, you were fab in those past 6 months, and now the time has come that you are ready to enjoy the food journey with your baby. So grab that glass of coconut water. It's going to be a little bit detailed educational video. Let's get started. Hello, hi all mommies and the moms to be. I'm Manusha, your mommy friend, and you're welcome to the Staring Mommy World. Today's topic is ABC of your baby's first food. See, जैसे ही हमारा बेबी 6 months का होने वाला होता है, we all mothers get anxious. We have different questions popping up in our head. How to start, what to give, what not to give, when to give, and blah blah blah. So we'll discuss this in detail in this case. So before we start discussing about baby's first food and some myth breakers and other details about it, let me just first get you through some NHS and WHO's guidelines. First one, which is जब भी आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं, फीड कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वो सिटिंग पोजीशन पे है, अपराइट पोजीशन पे बैठा हुआ है. ओके, सो इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ नोइंग दैट योर बेबी इज रेडी फॉर द फूड और नॉट. जैसे ही बच्चा ट्राइपॉड पोजीशन में बैठना स्टार्ट कर दे, ट्राइपॉड पोजीशन मीन्स विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ हिज हैंड्स वो आगे सपोर्ट लेके लीन कर सकता है. सो दैट इज इंडिकेशन. एंड उसका नेक काफ़ी स्टेबल हो जाए और इनफैक्ट वो मिनिमम सपोर्ट के साथ बैठ सके. Thank you view for this demonstration. Now please you continue with your nap because mama got to complete this video, right? Love you. So one more thing, if they can't actually sit with proper support, that's also okay. आप उस वक्त उसको अपनी गोद में बैठाएं, गिव देम सपोर्ट विद ईदर योर हैंड और योर स्टमक. मेक श्योर वो सीधा बैठा है और तो ही उसको फीड करें. ओके, नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीप दिस इन माइंड. 1 साल तक के बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फॉर कैलोरीज. ओके, कॉपी दिस, आई गेट बैक टू इट. नंबर 3, when we introduce food 6 month में, this is called complementary feeding or weaning. That means complementary, इसका role is important. Yes, you need to introduce it क्योंकि breast milk is not sufficient after this. उसको baby के overall brain development and body development के लिए food is also important. But it is complementary. That means इसका major role है कि बच्चे को variety of textures, flavors से introduce किया जाए. Okay, so this has to be a fun activity. If you want कि ये stress free रहे for both baby and you need to make sure that you are not doing distraction feeding. बच्चा अपने आप आराम से बता देता है when he doesn't want to eat more, like by turning his face or just like not opening mouth for the spoon, and maybe he becomes fussy if you try to feed him more. That's why no to distraction feeding. Don't do this kabu aaya and eat it. Please, a big no to this. 4th point is okay, when I said that introduce करो textures and flavors, तो please अब इसको ये मत समझ लेना कि हमको salt और sugar डालो, खाने को बहुत चटपटा अच्छा बनाओ और बच्चे को परोस दो. नहीं, there is a strict rule of no sugar, no salt diet, and I will Let's talk about the main मुद्दा जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो ट्यून इन किया है. आखिर बच्चे को खिलाएं क्या, राइट? तो फ्रूट से स्टार्ट करें कि वेजिटेबल से स्टार्ट करें? बट व्हाट इफ आई से कि देयर इज दिस इक्वेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. आई मीन देयर इज अनदर वेरिएबल, दैट इज यू कैन इवन स्टार्ट विद फैमिली फूड. शॉक्ड? But yeah, you can, but obviously consistency appropriate that baby can swallow it properly, and obviously adjusted spices, no salt, no sugar. कि हम कितना मील से स्टार्ट करें. सी बेबी का जो स्टमक होता है लाइक टिनी टाइनी स्टमक, एक फिस्ट के साइज़ का होता है. उनको इतना भूख नहीं लगा होता है. एंड प्लस यू आर ऑल्सो गिविंग देम ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क वट एवर, सो दैट रिमेन्स द मेन सोर्स एंड दैट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड विद द सॉलिड फूड. At 6 months,
एट मोस्ट 1 मील इज सफिशेंट एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइस कि आप उसको फर्स्ट हाफ ऑफ द डे या मॉर्निंग में दें, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको पूरा दिन मिलेगा ये देखने के लिए कि कोई एलर्जी रिएक्शंस तो नहीं हो रहे हैं बच्चे को. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिस्टेंसी. हम किस कंसिस्टेंसी का प्रोवाइड करें, प्यूरी से करें या मैश फूड से करें, किस से करें. सी बच्चे के जो गम्स होते हैं ना, दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग. उनको टीदिंग नहीं भी हुई होती है तो भी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. वो ईजिली मैश फूड को एक्सेप्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट कई पेरेंट्स तो स्टार्टिंग से ही उनको फिंगर फूड देते हैं. दे डोंट इवन स्टार्ट विद द स्पून फीडिंग. दैट इज अगेन अनदर स्टोरी, दैट इज बेबी लेड फीडिंग. आई डिडंट डू इट, सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट. आई स्टार्टेड विद मैश्ड फूड. मैंने कभी भी वियान को प्यूरी नहीं दिया. आई नेवर यूज्ड ब्लेंडर और मिक्सर टू मेक द प्यूरी. ना ही मैंने उसे बॉईल करके किसी फूड को दिया है. आई ऑलवेज मेक श्योर कि वो स्टीम्ड फूड हो, ना कि बॉईल हो. बिकॉज सी बॉइलिंग से क्या होता है, व्हेन यू बॉईल इट एंड देन यू जस्ट सीव इट, तो आप न्यूट्रिएंट्स तो वाटर के साथ ही बहा रहे हो. सो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. उससे उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत रिड्यूस हो जाता है. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू स्टीम. ओके, नाउ डोंट स्टार्ट थिंकिंग कि हम अमेजोन पे जाते हैं और हम एक अच्छा सा स्टीमर ऑर्डर करते हैं. आई डिड, मैंने कभी कोई स्टीमर ऑर्डर नहीं किया. आई यूज द इडली स्टैंड एज अ स्टीमर एंड आई एम हैप्पीली यूजिंग इट टुडे ऑल्सो. The consistency, that is, yeah, obviously the consistency should be like if you're filling a spoon and you're testing, it should not fall down. Okay, it shouldn't fall down, should not be runny, watery नहीं होना चाहिए. बच्चा मैश फूड आराम से खा सकता है. बट या in any case अगर आपका बच्चा मैश फूड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड ट्राई द प्यूरी. देयर इज नो हार्म. आप हमेशा स्विच कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी को. कोई आपको कोई रूल नहीं है कि एक चीज़ पे चल रही है तो बस उसी पे चलना है. बट आई वुड एडवाइज start with some mashy food because that will be like adding texture from the start. Mommy, so you can give a mashed banana or steamed puree or mashed apple. You can give pure, some boiled, peeled and pureed plums. You can give papaya, avocado if that is in your family menu. You can also give broccoli, carrot. Then you can give dal, rice, mashed obviously properly without salt. You can give khichdi. You can add some green vegetables in khichdi and mash them. You can make dalia. I actually introduced dalia in the 6th month only, so I actually introduced gluten in that way. You can use ragi, some green leafy vegetables as I already told you. You can either puree them separately or you can give them with khichdi and dalia. ओके, वही होती हैं कि हमें हमारे बच्चे को एलर्जी ना हो जाए किसी खाने से. उसके लिए हम क्या करें. देखो, पहली बात तो अगर आपकी फैमिली में कोई एलर्जी हिस्ट्री नहीं है तो आपको इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. 95% केसेस पे कोई एलर्जी शो अप नहीं होती है, नंबर 1. नंबर 2, कुछ हाई अलर्ट एलर्जेंस होते हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने होते हैं. वो प्रिकॉशन सिर्फ ये है कि आपको उन्हें फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, दैट इज़ प्रेफरेबली मॉर्निंग में इंट्रोड्यूस करना होता है और उनको आप आइसोलेशन में इंट्रोड्यूस करो. मतलब उनको एक बार में एक ही फूड इंट्रोड्यूस करो, उनको किसी और फूड के साथ मिक्स मत करो. दैट्स इट. तो उनका लिस्ट कॉमन एलर्जेंस का ये है, दैट इज़ काउ मिल्क, एग, ग्लूटेन मतलब wheat, nuts and peanuts. Obviously you will crush and ground and then give them. Soya, fish and shellfish and citrus fruits and berries. Okay. So another thing is there's a myth that says 3 day rule, right? कि 3 दिन वेट करो एक फूड को देने के लिए, उसके बाद उसका एलर्जिक रिस्पॉन्स देखो. सी दिस थ्योरी इज ऑब्सोलीट नाउ. आपको 3 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी एलर्जी रिस्पॉन्स आना होता है तो विद इन सेम डे आ जाता है. सुबह फूड दो, पूरा दिन यू जस्ट नोटिस टू स्पॉट एनी एलर्जिक रिएक्शन. एंड आई वुड एडवाइज नेवर इंट्रोड्यूस अ न्यू फूड इन द नाइट, क्योंकि रात को सोए बाद इवन यू आर ड्राउजी एंड स्लीपी, यू वोंट बी एबल टू track the things that good as you can do within the afternoon and the evening time. So always introduce that new food in the morning. Okay, that's the rule, that's the latest recommendations. Plus you need not to avoid these allergens that कि 12 महीने के बाद देते हैं इन allergens को. नहीं, नई NHS और WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको एक्चुअली उनको जितना जल्दी इंट्रोड्यूस कर सकते हो उतना बेटर है. उससे ये होगा कि लेटर इन फ्यूचर
से एलर्जी डेवलप होने की टेंडेंसी ही रिड्यूस हो जाती है. इफ आई हैव मिस्ड समथिंग और इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चंस देन प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई वुड बी हैप्पी टू एड्रेस. Thank you. Mwah. Aha.